Hello future doctors, welcome to NEET Ultimatum. Here we are working to achieve the dream. So, without wasting a single minute, let's just start today's class. What we are going to do today? Yes, today it is Pradishta 02. We have successfully completed Pradishta 01 in the previous classes. I hope that you people have done Pradishta 01. If you people have done Pradishta 01, then continue with Pradishta 02 because it is a continuation part of Pradishta. Right, so let's just proceed to the Pradishta. Now what we have to see in Pradishta, let's just start without wasting a time. Okay, the first here we are going to see the classification under the heading Pradishta. The first group that is here is chrysophytes. Chrysophytes mean what we are going to study habitat structure. Please be focused and just stick to the screen, and please take a rough note with some pen or pencil in your hand and focus mind on the screen. That's it. And let's just start. Chrysophytes, desmite, golden algae. Desmite, golden algae in as giving main and prime importance to NCERT. In NCERT the desmites के बारे में लोग दिए है कि desmite are also referred to as golden algae. So desmite के बारे में हम इतना ही जानेंगे, बट diatoms के बारे में we have an explanation. ठीक है, देखिए अब आप यहाँ पर नोटिस करिए habitats. Habitats in the groups that we are going to deal forthwhile. आप देखिए यहाँ पर habitat. First in chrysophyte we can see both मराइन एंड फ्रेश वाटर में हम क्राइसोफाइट को फाइंड कर सकते हैं, बट इन द फर्दर ग्रुप्स व्हाट वी कैन सी, लेट्स जस्ट सी. देखिए क्राइसोफाइट्स दैट इज बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर. प्लीज नोट इट इन रफ नोट. क्राइसोफाइट दैट इज बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर. द नेक्स्ट थिंग द स्ट्रक्चर इज सेल वॉल. अब हमें सेल वॉल में सेल्यूलोज प्लस सिलिका, सेल्यूलोज के साथ हमें सिलिका लग रहा है. दैट इज द न्यू एलिमेंट लाइक सिलिका. आपको दिखेगा आपके बायो में सिलिका सेल वॉल में होगा. फर्स्ट तो हमें दिखेगा कहाँ पर, देखिए अमीबॉइड प्रोटोजोन. राइट, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में हमें मिला था मराइन ऑर्गेनिज्म में वी हैव सिलिका. देयर वी कैन सी सिलिका एंड हियर दैट इज क्राइसोफाइट ग्रुप में आपको सेल वॉल के साथ मिलेगा सिलिका, दैट इज SiO2. अब सिलिका इज इंडेस्ट्रक्टिबल. वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय सिलिका बिकॉज वी हैव नो एंजाइम टू डिग्रेड. हमारे पास कोई एंजाइम ही नहीं है दैट इज थ्रू विच वी कैन डिग्रेड सिलिका. so that is the reason silica is indestructible because we have no enzyme to degrade silica. अब flagella, we have no flagella, that is flagella is absent. Flagella and cilia are the structures that help in motility, but यहाँ पर flagella ही नहीं है, that is वो लोग मूव कैसे करेंगे, मोटिलिटी कैसा होगी. Diatoms move with the water and such movement is called planktonic movement. वो लोग क्या करेंगे, they are microscopic. First of all they are microscopic organism and they move. वो लोग क्या करेंगे, पानी के बहाव के साथ मूव करने लग जाएंगे. So that movement is referred to as planktonic movement. Okay, such movement is referred to as planktonic movement. So now okay, pigments. अब आपको कौन सा पिगमेंट दिख रहा है यहाँ पर, yes chlorophyll A. अगर chlorophyll A पिगमेंट है then what will be the nutrition? Please just say it fast. Yes, oxygenic photosynthesis. Very good. The next thing here is cell wall. Cell wall में हमें क्या क्या composition था cell wall का, what we have seen in cell wall, that is cellulose plus silica. Right, now अब cell wall का structure देखिए, it is like overlapping soap case. यहाँ पर क्या होगा, overlapping soap case कैसे दिखेगा. राइट, ये है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग पॉइंट प्लीज नोट करें, इट इज लाइक थिन ओवरलैपिंग सोप केस. क्यों सोप केस बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए टू थिन ओवरलैपिंग सोप केस, एपिथिका और आइपोथिका. सो एपिथिका एंड आइपोथिका आप लोग को नेम्स नहीं दे चुके हैं यहाँ पर NCERT में, सो प्लीज डोंट गो विद द नेम्स, बट आई एम सेइंग हियर एपिथिका और आइपोथिका and it cell wall is like overlapping soap case and ये overlapping soap case it is thin overlapping soap case. right, आपको क्या दिखा था सेल वॉल में, फर्स्ट सेल्यूलोस एंड सिलिका. सिलिका इज इंडेस्ट्रक्टिबल ड्यू टू नो एंजाइम टू डिग्रेड. अब कोई चीज़ हम डिग्रेड नहीं कर पा रहे, देखिए सिलिका हम डिग्रेड नहीं कर पा रहे बिकॉज नो एंजाइम. राइट, एंजाइम नहीं है, डिग्रेड नहीं कर पा रहा, दैट इज समथिंग रीजन, बट कोई चीज़ डिग्रेड नहीं कर पा रही. एंड सिलिका इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, दैट मीन सेल वॉल हम डिग्रेड नहीं कर पा रहे. सो यहाँ पर क्या होगा, ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स, बहुत सालों तक वो एक्यूमुलेट होते जाएगी. राइट, कुछ चीज़ अगर डिग्रेड नहीं हो पा रही, कुछ खत्म नहीं हो पा रही, इट विल एक्यूमुलेट. राइट, यस, वो एक्यूमुलेट हो जाएगी ऑन द बॉटम ऑफ अर्थ सरफेस, वो नीचे जाकर एक्यूमुलेट होती जाएगी. राइट, एक्यूमुलेट होकर वो है फर्स्ट एक्वेटिक, वो पानी में होंगे. अब कोई चीज़ डिग्रेड हो रही नहीं रही है तो वो क्या होगी, बॉटम ऑफ अर्थ की एक्यूमुलेट हो जाएगी. अब नाउ दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो बिलियन ऑफ ईयर्स, इसको हम बोलेंगे डाई एटमीशियस अर्थ. हम इसको क्या बोलेंगे, डाई एटमीशियस अर्थ.
ये स्ट्रक्चर का नाम है डायटोमिशियस अर्थ एंड इट इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस। वो क्या इंपॉर्टेंस है वी विल सीन इन द नेक्स्ट स्लाइड। सी हम सेल वॉल के बारे में पढ़ लिए, दैट इज इट इज़ लाइक ओवरलैपिंग सोप केस। हम देखे थे कि पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए, प्लीज़ आप लोग पिगमेंट्स हैबिटेट हर चीज़ को परफेक्टली नोट करें, क्योंकि जब नेक्स्ट ग्रुप आएंगे आप लोग को रिलेट कर पाओगे। न्यूट्रिशन दैट इज ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ओके दिस देखिए यहाँ पर स्पेशल पॉइंट्स। अब स्पेशल पॉइंट अबाउट क्राइसोफाइट, सिलिका इज इंडेस्ट्रक्टिबल बिकॉज नो एंजाइम। अब एंजाइम नहीं है दैट इज वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय। अब वो क्या होगा, एक्यूमुलेट होते जाएगा एट द बॉटम ऑफ अर्थ एंड वो एक बनाएगा मास दैट इज डायटोमिशियस अर्थ। वी हैव गॉन थ्रू दिस राइट। अब डायटोमिशियस अर्थ के यूजेस देखिए, इट इज़ यूज इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप एंड एक और एक यूज है दैट इज इट इज ऑल्सो यूज इन पॉलिशिंग। So what is the use of diatom? That is it is used in filtration of oil and syrup as well as polishing. Now diatoms, they are the chief producers in oceans, right? Diatoms are chief producers in ocean. आपको यहाँ पर producers की प्लेस में consumer और decomposer देके आपको confuse करके आपको negative marking लाने की कोशिश करेंगे examiners. So please note here they are chief producers. अगर आप लोग keenly पढ़ोगे you can not do anything wrong and you will score full. So please don't think anything negative, just be there. देखिए अब हम एक और बार देख लेंगे क्राइसोफाइट, देन वी विल गो टू एनसीईआरटी पार्ट। देखिए क्राइसोफाइट, डेस्माइट्स ऑल्सो रिफर्ड एज गोल्डन algae, डायटम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए हैबिटेट एक्वेटिक दैट इज बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर मिले हमें। सेल वॉल थी सेल्यूलोज के साथ सिलिका है, CO2 सिलिका इंडेस्ट्रक्टिबल बिकॉज कोई एंजाइम नहीं था, दैट मीन्स वो लोग एक्यूमुलेट हो रहे थे एंड एक मास बना रहे थे दैट इज डायटोमिशियस अर्थ एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स एंड पॉलिशिंग में जिसका यूज था। फ्लैचेला तो है नहीं। देन प्लैंक्टोनिक मूवमेंट हमें मिल रहा है यहाँ पर। पिगमेंट था क्लोरोफिल, दैट इज द रीजन फोटोसिंथेसिस वाज ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। नाउ द सेल वॉल वाज लाइक थिन ओवरलैपिंग सोप के इसके जैसा था राइट। वी हैव सीन एंड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। सिलिका इज इंडेस्ट्रक्टिबल एंड वो एक्यूमुलेट होगा बॉटम ऑफ अर्थ पे, डायटोमिशियस अर्थ बनाएगा जो फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप प्लस पॉलिशिंग में यूज होगा एंड डायटम दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। नाउ लेट्स सी द एनसीईआरटी इफ यू हैव एनी डाउट लाइक दैट। So here NCERT part chrysophyte. This group include diatoms and golden algae desmites. They are found in fresh water as well as marine environments. They are microscopic and float passively, means water के साथ in water current, that is planktonic movement. Most of them are photosynthetic because pigment is chlorophyll. In diatom the cell wall form two thin, please note here, overlapping shell that is epitheca और hypotheca which fit together. देखिए epitheca और hypotheca two thin, ये है overlapping shells right, ये shell इस पे overlap हो रहा है right, that is two thin overlapping shells which fit together like a soap box के तरह आपको लग रहा है ना ये। The walls are embedded with silica and thus walls are indestructible. Walls क्यों indestructible है, क्योंकि सिलिका से एम्बेड करे हुए। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall. Cell wall में सिलिका मिल रहा है, that is cell wall यहाँ पर हमें वैसे ही रह जाएगी, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन देके आपको कंफ्यूज कर सकता है। So please be keen. Cell wall deposit in the habitat. This accumulation of billion of years is referred to as diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing. अब ये soil को हम क्या करेंगे, polishing, filtration of oil and syrups में ये वाली soil जो diatomaceous earth है हम उसको use करेंगे। Diatoms are chief producers in oceans. Okay, we have completed our first group that is chrysophyte. Now the next group is here that is dinoflagellate. Please note the habitat. देखिए only marine habitat right, only marine habitat can be seen in dinoflagellate. Okay, only marine habitat in dinoflagellate. देखिए ओनली मराइन हैबिटेट इन डायनोफ्लैजेलेट। सो वहाँ पर हम क्राइसोफाइट में बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर देखे थे, बट डायनोफ्लैजेलेट में ओनली मराइन। स्ट्रक्चर देखिए सेल वॉल, वहाँ पर हम देखे थे सेल वॉल में था सेल्यूलोज प्लस सिलिका। अब यहाँ पर देखिए सेल वॉल में होगा सेल्यूलोज स्टिफ प्लेट्स दिखेंगी हमें, सेल्यूलोज की स्टिफ प्लेट्स दिखेंगी। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स ग्रूव प्रेजेंट हो गए। क्या होगा, सेल्यूलोज की स्टिफ प्लेट्स होंगी, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स ग्रूव भी दिखेगा। फ्लैजेला देखिए दो होंगे, दैट इज टू प्रेजेंट, वन लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला होगा एंड वन ट्रांसवर्स फ्लैजेला होगा। देखिए शायद आप लोगों को उतना ज़्यादा समझ ना आए ये वाला पॉइंट्स, सो वी विल go with the diagram so that people can have a good understanding. फर्स्ट मैंने कहा था कि सेल्यूलोज स्टिफ प्लेट्स होंगी। क्या आपको ये सेल्यूलोज की स्टिफ प्लेट्स दिख रही हैं? यस, सो दिस इज द सेल्यूलोज स्टिफ प्लेट्स राइट, एंड ये होगा हमारा सेल्यूलोज स्टिफ प्लेट्स, ये है हमारा सेल्यूलोज स्टिफ प्लेट्स राइट। लॉन्गिट्यूडनल हम इसको बोलेंगे, ट्रांसवर्स हम इसको बोलेंगे राइट। देखिए ये जो आपको यहाँ पर स्पेस दिख रही है ये ग्रूव है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, दिस इज ट्रांसवर्स ग्रूव राइट। जो हम पढ़े दैट इज सेल्यूलोज स्टिफ प्लेट्स हमें मिल गया, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव हमने देख लिया
एंड ये है हमारा ट्रांसवर्स ग्रूव, राइट। अब देखिए हम पढ़े कि वी हैव टू फ्लैजेला, वन इज लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। आप यहाँ कीनली देखिए दिस इज अवर फ्लैजेला, राइट, दिस इज अवर फ्लैजेला, ओके, दिस इज अवर ट्रांसवर्स फ्लैजेला। तो एक होगा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, यहाँ पर देखेंगे हम दिस इज अवर ट्रांसवर्स फ्लैजेला, राइट। सो दिस इज सेल्यूलोस्टिफ्लेट्स, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, longitudinal flagella and transverse flagella, right? The next thing that we can see here is this slide आपको समझ आ चुकी, या ठीक है। नेक्स्ट थिंग पिगमेंट्स, आप लोग पिगमेंट्स देखें, यहाँ पर क्लोरोफिल ए तो है, बट विथ क्लोरोफिल ए अगर हमारे पास रेड डाइनोफ्लैजेलेट है, हमारे पास हमको मिलेगा रेड पिगमेंट लाइक R5 जो हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। अगर ब्लू है देन क्लोरोफिल ए प्लस ब्लू, या फिर ऑरेंज, देखिए क्लोरोफिल ए प्लस रेड, ऑरेंज, ब्लू, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मेन पिगमेंट पे वो लोग डिपेंड होके क्लोरोफिल ए तो होगा, दैट मीन्स न्यूट्रिशन होगा, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन देखिए इट इज लोअर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट टू फिजन। स्पेशल पॉइंट here we can notice रेड डाइनोफ्लैजेलेट, दैट इज गोनियोलैक्स के बारे में, रेड डाइनोफ्लैजेलेट के बारे में हमें दिया हुआ है, नेम इज गोनियोलैक्स। देखिए वो लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, दे विल मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। जैसे कि वो लोग रेड है, वो लोग मल्टीप्लाई फास्टली होंगे तो लोग पॉपुलेशन हो जाएगी उन लोगों की, दैट इज़ द रीज़न सी भी हमें रेड अपीयर हो जाएगी, उसको हम रिफर करेंगे रेड टाइड्स इन मेडिटरेनियन सी, वॉट वी रिफर देम एज रेड टाइड इन मेडिटरेनियन सी, ओके, रेड टाइड्स इन मेडिटेरेनियन सी। देखिए देन अब लोग क्या करेंगे, वो लोग का पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, वो लोग मल्टीप्लाई करे वेरी फास्टली एंड वो लोग सी को भी रेड कर दिए, जिसको हम बोल रहे हैं रेड टाइड्स इन मेडिटेरेनियन सी। अब वो लोग क्या करेंगे, टॉक्सिन ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, ज़्यादा टॉक्सिन रिलीज़ करने की वजह से जो अदर मराइन ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे कि फिशेस, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। पिगमेंट था हमारे पास क्लोरोफिल ए प्लस एनी ऑफ दिस पिगमेंट, देन न्यूट्रिशन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल ए तो है हमारे पास, रिप्रोडक्शन दैट इज फिजन। स्पेशल पॉइंट में हमें रेड डाइनोफ्लैजेलेट दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट विच मेक्स सी अपीयर रेड टाइड्स इन मेडिटेरेनियन सी, they produce large amount of toxins and lead to death of marine organism like fishes, ठीक है। let's see dinoflagellate once again, dinoflagellate habitat only marine, please note this structure में देखिए सेल वॉल, सेल्यूलोज ट्रिप्लेट्स हमें दिखिए, let's just see from the diagram once again, cellulose triplets, right, cellulose triplets, longitudinal groove, transverse groove, longitudinal flagella and transverse flagella, right. So we have two flagella, one longitudinal and one transverse, right. Then if we have chlorophyll A as a pigment, then what will be the nutrition, right, chlorophyll A plus any of this pigment, nutrition will be oxygenic photosynthesis, reproduction is fission, and हमें स्पेशली दिया हुआ है रेड डाइनोफ्लैजेलेट के बारे में, दे मल्टीप्लाई वेरी फास्टली एंड सी को भी रेड कर देंगे, द रिफर टू एज रेड टाइड्स इन मेडिटेरेनियन सी। अब वो लोग क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिन रिलीज करेंगे विच लीड टू डेथ ऑफ मेनी अदर मराइन ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस, राइट। सो नाउ लेट्स जस्ट सी एनसीईआरटी ऑल अबाउट इफ वी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, here we go with the NCERT of dinoflagellate. These organisms are mostly marine and photosynthetic क्योंकि they have chlorophyll, right. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in the cell, but photosynthetic है, that means they have chlorophyll. Oxygenic, that too. The cell wall has cellulose stiff plates on the outer surface. Most of them have two flagella. One lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates. Very often, red dinoflagellate, that is Goniolax, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red. Red tides, they release large amount of toxins and they lead to death of many other marine animals like fishes. So this was the NCERT part. And now the next group, that is euglenoids, is here. Let's see euglenoids. Habitat, first chrysophytes में we have seen both marine and freshwater, then dinoflagellates only marine. Then in euglenoid what we see is habitat is mainly freshwater habitat. Cell wall is absent. Instead of cell wall तो यहाँ पर नहीं दिखेगी हमें euglenoids में. Then instead of cell wall they have a protein rich pellicle. अब देखिए हम ये डायग्राम से देखेंगे. इंस्टेड ऑफ सेल वॉल हमें यहाँ पर यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल तो नहीं मिलेगी. हमने वहाँ पर देखा था कि सेल वॉल में था फर्स्ट
सेल्यूलोज प्लस सिलिका, देन सेल्यूलोज ट्रिप्लेट्स देखिए हम डायनोफ्लैजेलेट्स में। देन देखिए यूग्लिनोइड्स में व्हाट वी सी सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल होगी ही नहीं। व्हाट वी सी इंस्टेड हियर इज, यहाँ पर आपको दिखेगी एक प्रोटीन रिच लेयर विच इज नोन एज पेलिकल। ये प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल हमें दिखेगी यूग्लिनोइड्स में इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। एंड देखिए फ्लैजेला, इन डायनोफ्लैजेलेट वी हैव सीन टू फ्लैजेला, दैट इज वन वाज लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला and the other was transverse flagella. But in euglenoids we see here also two flagella, but what they are, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आपको दिख रहा है दो फ्लैजेला, एक है बड़ा फ्लैजेला दैट इज वन इज लॉन्ग एंड द अदर इज शॉर्ट, एंड फ्लैजेला दे आर अपाइकल. व्हाट डज दिस अपाइकल मीन्स, सी हियर दिस इज अपाइकल एंड दिस इज लैटरल. हियर आपको अपाइकल flagella and that two, one is long and the other one is short. This is about the flagella. There are two apical, one is long and one is short. Okay, and protein rich layer perical instead of cell wall. And हमें पता है कि यूग्लिनोइड्स में हम पढ़े कि we have a special vacuole, that is contractile vacuole here. These are plastid, nucleus and cell membrane. Okay, now let's see the slide. Have you people understood this slide? देखिए cell wall absent, instead they have protein rich layer that is pellicle. Flagella 2 होंगे apical, right, unequal है क्योंकि एक होगा शॉर्ट एक होगा लॉन्ग, इसीलिए अगर एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट एज अनइक्वल, क्योंकि एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है. हम डायनोफ्लैजेलेट्स में देखे थे कि एक था लॉन्गिट्यूडनल एंड एक था ट्रांसवर्स, बट यहाँ पर देखिए अनइक्वल है, दैट इज वन शॉर्ट है एंड वन लॉन्ग है. पिगमेंट्स यूग्लिनोइड्स में देखें, दिस इज अ स्पेशल पॉइंट अबाउट यूग्लिनोइड्स. पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट्स होंगे. हायर प्लांट्स में देखिए फर्स्ट in Chrysophyte we have seen chlorophyll and in dinoflagellates we have seen chlorophyll, but in euglenoid we are saying that euglenoids have pigments similar to higher plants, but higher plants में कौन से pigments होंगे, that is chlorophyll and chlorophyll दो भी होगा euglenoids में. that is the reason we are saying euglenoids में pigment हो गए similar to higher plants. अब higher plants में आपको दो भी दिखेंगे, that is chlorophyll A and chlorophyll B. So this was about euglenoid, that is pigment similar to higher plant, that is chlorophyll A and chlorophyll B. आपको दो भी मिलेंगे euglenoids में. So pigment से आपको क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि it is something different, right, among others they are holding some difference. न्यूट्रिशन, अब देखिए न्यूट्रिशन आप लोग अच्छे से समझे क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं. देखिए दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में लोग फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे, बट जब लाइट एब्सेंस हो जाएगी, जब लाइट की एब्सेंस हो जाएगी दे बिकम हेटेरोट्रॉफिक, वो लोग हेटेरोट्रॉफिक हो जाएंगे. अगर लाइट है दे आर फोटोसिंथेटिक, दैट इज वो लोग ऑटोट्रॉफिक होके खुद ही खाना बनाएंगे. बट अगर लाइट हम हटा दे, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ लाइट दे बिकम हेटेरोट्रॉफिक, वो लोग हेटेरोट्रॉफिक हो जाएंगे एंड दे स्टार्ट प्रीडेटिंग ऑन स्मॉलर एनिमल्स, वो लोग स्मॉलर एनिमल्स पे प्रीडेट करना शुरू हो जाएंगे. दैट इज द in that sense they become heterotrophic and in the presence of light they make their own food and they will be autotrophic. तो देखिए यहाँ पर न्यूट्रिशन में what we see is we see both autotrophic and autotrophic in the presence of light and heterotrophic in the absence of light. So here the nutrition is called as mixotrophic nutrition, right, mixed nutrition दिख रहा ना हमें, that is autotrophic plus heterotrophic. That is the reason mixotrophic. Now the question may come is mixotrophic nutrition can be seen in, yes, आप लोग बोलेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट इट इज इन एनसीईआरटी क्योंकि मिक्सोट्रॉफिक द वर्ड इज इन गिवन, बट मिक्सोट्रॉफिक मिक्स्ड न्यूट्रिशन कैन बी सीन इन यूग्लिना क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे आर ऑटोट्रॉफिक, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट दे आर हेटेरोट्रॉफिक, दैट मीन्स मिक्स्ड न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफिक. इन दिस वे दे विल कोरिलेट, सो प्लीज be keen. Reproduction, that is longitudinal binary fission. आज देखिए suppose this is our euglena, then आपको दिखेगा longitudinal binary, longitudinally लोग fission करेंगे, that is longitudinal binary fission. ठीक है. Now special point देखिए आप लोग, chlorophyll B, chlorophyll A तो हम ट्राइसोफाइट में भी देखे, डायनोफ्लैजेलेट में भी देखे. There is something special what we see here is chlorophyll BB, that is chlorophyll A and chlorophyll B. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये प्लांट से भी कनेक्ट हो जा रहा है क्योंकि इट हैव पिगमेंट सिमिलर टू प्लांट्स, राइट, दैट इज द रीजन इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. देन pellicle is present, instead of cell wall they have proteinish layer pellicle. Now let's just see NCERT part of euglenoid. Majority of them are fresh water, right, found in stagnant water. Instead of cell wall, that is cell wall is absent, they have a protein rich layer called pellicle which makes the body flexible. Body flexible होने की reason क्या है, because they have a protein rich layer that is called pellicle, and they have two flagella, a short, that is one is short and one is long one.
though they are photosynthetic in the presence of light, that is autotrophic. When deprived, that is absence of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on smaller animals, means mixotrophic nutrition. Interestingly, the pigments of euglenoids are identical, that is similar to those present in higher plant, that is chlorophyll A and chlorophyll B. Example is euglena, we have seen the figure as well. ठीक है. Now the next thing here is slime molds. Slime mold is the our last group of the day. देखिए slime molds. First हमें क्राइसोफाइट्स में हम देखे थे habitat was marine. क्राइसोफाइट्स में we have seen the habitat was marine and freshwater. Then comes dinoflagellate. Dinoflagellate में we have seen maize, that is mostly marine. Then euglenoid में we have seen mostly freshwater. Now the next group, that is slime mold, is here. Slime mold, that is habitat they grow on decaying twig and leaf. जो decay हो रहा है, अगर लीफ डीके हो रही है हमारी, देन वो डीके लीफ पे आपको मिलेंगे स्लाइम मोल्ड. आपको स्लाइम मोल्ड मिल जाएंगे वो डीके लीफ पे, डीकेइंग लीफ एंड ट्विग्स पे आपको मिलेंगे स्लाइम मोल्ड्स. ये है इसका हैबिटेट. डीकेइंग मींस मरती हुई चीज़ पे, दैट इज द न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा इसका, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. ठीक है. अब देखिए स्ट्रक्चर में मेन स्टेज इज मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लास्मोडियम. व्हाट डज दिस मीन, what does this main stage refer to as? अब मैं आप लोग को दूंगी 1 day, that is 24 hours, right? अब 24 hours में if you are doing 18 hours of study, 18 hours of study, right? You are studying for 18 hours. I wish you do that also. ठीक है. आप लोग 18 hours स्टडी कर रहे हो, मीन्स आप लोग की 24 hours में आप लोग ज़्यादा ड्यूरेशन किस चीज़ पे कर रहे हो, स्टडिंग पे कर रहे हो, राइट? तो आपको यहाँ पर मेन स्टेज क्या होगा, स्टडिंग. आपका एक दिन का हम देखें तो दैट इज मेन स्टेज ऑफ द डे, तो स्टडीज बोल देंगे हम. अब यहाँ पर अलग लाइफ साइकिल में जो प्लास्मोडियम है वो अलग लाइफ साइकिल में ज़्यादा ड्यूरेशन तक का हमें दिखेगा. दैट इज द रीज़न वी आर कॉलिंग मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लास्मोडियम एज मेन स्टेज, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लास्मोडियम एज मेन स्टेज. हम न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक, क्योंकि दे आर ग्रोइंग ऑन डीकेइंग ट्विग एंड लीफ. हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस स्लाइड? नाउ देखिए दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम. अगर आप लोग ये समझ जाओगे, पढ़ लोगे, देन आप लोग को प्लास्मोडियम परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा. सी देखिए लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड, देखिए फर्स्ट इट इज लीफ, decaying leaf, right? and saprophytic nutrition, this is dead leaf, saprophytic nutrition. अब आपको यहाँ पर दिख रहा है प्लास्मोडियम, दिस इज प्लास्मोडियम, दिस इज डेड लीफ, हियर दिस इज प्लास्मोडियम. वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट इज आपको यहाँ पर दिखेगा ये जो डेड लीफ है आपकी वो और ज़्यादा एंगल्फ हो चुकी है. उसने ये प्लास्मोडियम ने कुछ एंजाइम रिलीज करे यहाँ पर एंड इसका सेल्यूलोज ब्रेक करके उन्हें खुद को इंक्रीज कर लिया है. यहाँ पर देखो प्लास्मोडियम की ग्रोथ हो चुकी है एंड डेड लीफ और ज़्यादा एंगल्फ हो चुकी है. इससे हम क्या समझे कि यहाँ के कुछ जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स थे प्लास्मोडियम ने ले लिया है एंड इट हैज़ ग्रोन. प्लास्मोडियम ग्रोस टू सेवरल फीट. ऐसे ही प्लास्मोडियम क्या करेगा, डेड लीफ न्यूट्रिशन ले लेके इट विल ग्रो टू सेवरल फीट. प्लास्मोडियम इट विल ग्रो टू सेवरल फीट, राइट? इसलिए हम बोलते हैं कि प्लास्मोडियम ग्रोस टू सेवरल. अब वो कहाँ से न्यूट्रिशन ले रहा है, डेड लीफ से. दैट इज द रीजन इट इज सैप्रोफाइटिक. देखिए अब वहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है इट इज़ डेड लीफ, यहाँ पर प्लास्मोडियम था, देन यहाँ पर प्लास्मोडियम इट हैज़ इंक्रीज, इट हैज़ ग्रोन, राइट? ऐसे ही प्लास्मोडियम सेवरल फीट तक इंक्रीज हो सकता है न्यूट्रिशन ले लेकर. कहाँ से, डेड लीफ से. नाउ अब क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन आ गया. सपोज लोअर ऑर्गेनिज्म में अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स फूड फिनिश हो जाना. अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स उन लोगों को फूड फिनिश हो जाना. फूड फिनिश होने लग गया, दैट इज यहाँ के लीफ से जो जो न्यूट्रिएंट्स ले सकता था इट हैज़ टेकन. अब फूड फिनिश होने लग गया. अब प्लास्मोडियम क्या करे, प्लास्मोडियम कन्वर्ट्स इनटू फ्रूटिंग बॉडी. जो ये प्लास्मोडियम ग्रो हुआ था, कब ग्रो हुआ था, बाई टेकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड लीफ. प्लास्मोडियम हमें ग्रो हो यहाँ पे देखिए ग्रोथ दिखी थी हमें प्लास्मोडियम की. बट जब अनफेवरेबल कंडीशंस आए, दैट इज फूड फिनिश होने लग गया, प्लास्मोडियम कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडी में. देखिए ये है हमारी फ्रूटिंग, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज अवर फ्रूटिंग बॉडीज. प्लास्मोडियम कन्वर्ट हो चुका है फ्रूटिंग बॉडीज में, कब, जब फूड फिनिश होने लग गया, जब अनफेवरेबल कंडीशन आ गए तो प्लास्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो गया. देन नाउ अब फ्रूटिंग बॉडी में आपको दिखेगा ऑन फ्रूटिंग बॉडी स्पोर फॉर्म. आपको फ्रूटिंग बॉडी में यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन दिखिए, यहाँ देखिए
ये था हमारा फ्रूटिंग बॉडी। यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी में आपको स्पोर फॉर्मेशन दिखेगा, यहाँ पर स्पोर फॉर्म हो गए इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर। अब ये स्पोर में देयर इज दे पोजेस ट्रू सेल वॉल, ट्रू सेल वॉल प्रोसेस होगी। यहाँ पर स्पोर में क्या है, आपको सेल वॉल दिखेगी, सेल वॉल प्रेजेंट है, दैट इज ट्रू सेल वॉल एंड दिस दैट इज वाई दिस सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। एंड आपको स्पोर कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज टिप, ये आपको टिप पर फॉर्म हो रहे हैं या नहीं, यस टिप पर हो रहे हैं। एंड आपको ट्रू सेल वॉल दिख रहा है एंड दे डिस्पर्स बाय एयर करंट, एयर करंट से स्पोर्ट्स का यहाँ पर एयर आएगी एंड इसका डिस्पोजल हो जाएगा। यहाँ पर आगे स्पोर्ट्स आपके, देन स्पोर्ट्स फिर गैमिट्स बनेंगे। फिर यह आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट स्टिल वी विल सी साइकिल, राइट। देखिए स्पोर्ट्स फिर गैमिट बनेंगे, देन गैमिट जाइगोट टू, देन आपका फिर बन जाएगा प्लास्मोडियम, फिर वो डेड लीफ पर ग्रो करेगा, देन डेड लीफ से न्यूट्रिशन लेकर वो फिर से ग्रो हो जाएगा सेवरल फीट। जब फुट फिनिश होने लग जाएगा दैट इज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडीज पर, कौन, प्लास्मोडियम। अब देन फ्रूटिंग बॉडीज बेयर स्पोर्स ऑन द टिप्स। अब फ्रूटिंग बॉडीज क्या करेंगे, दे बेयर स्पोर्स ऑन द टिप एंड स्पोर्स में हमें दिखेगा ट्रू सेल वॉल एंड उसका डिस्पर्जल है एयर करंट्स के थ्रू। अब एयर करंट्स के थ्रू स्पोर का डिस्पर्जल हो चुका, देन स्पोर दे फॉर्म गैमीट, देन जाइगोट, देन फिर बन जाएगा प्लास्मोडियम। देखिए हम क्या दिखा, फर्स्ट स्टेप इज डेड लीफ प्लास्मोडियम था, प्लास्मोडियम न्यूट्रिशन डेड लीफ से ले रहा, दैट इज सैप्रोफाइटिक एंड इट इज ग्रोइंग टू सेवरल फीट। यहाँ पर आपको दिख चुका है दैट इज प्लास्मोडियम हैज ग्रोन टू सेवरल फीट। नाउ जब अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब फुट फिनिश होने लगेगा, प्लास्मोडियम कन्वर्ट्स इनटू फ्रूटिंग बॉडीज। ये है हमारे फ्रूटिंग बॉडीज, प्लास्मोडियम कन्वर्ट हो चुके हैं फ्रूटिंग बॉडीज पे एंड फ्रूटिंग बॉडीज पे बेयर स्पोर्ट्स ऑन द टिप्स। ये उन लोग के टिप्स पे लोग बेयर करेंगे स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स के फीचर्स थे दैट इज इट पोजेस ट्रू सेल वॉल। फर्स्ट में ट्रू सेल वॉल होगी स्पोर्ट्स में, दैट इज द रीजन दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। एंड आपको दिखेंगे टिप्स पे एंड उन लोग का डिस्पोजल है थ्रू एयर, उन लोग का डिस्पोज बाय एयर करंट्स। अब उन लोग का डिस्पोजल हो गया है एयर करंट के थ्रू, ये आ गए हमारे स्पोर्ट्स। नाउ दिस स्पोर्ट्स दे विल फॉर्म गैमीट्स, now this gamete they will form zygote, now zygote will again form plasmodium and the life cycle continues. So this was about slime molds. We will see the last slide. देखिए slime mold, फर्स्ट स्लाइम मोल्ड हैबिटेट, दे ग्रो ऑन डिकेइंग ट्विग एंड लीफ। हम अभी अच्छे से जान लिए कैसा डिकेइंग ट्विग एंड लीफ में था। स्ट्रक्चर, मेन स्टेज आपको क्या दिखा है यहाँ पर, दैट मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लास्मोडियम था मेन स्टेज, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा ड्यूरेशन तक हमें लाइफ साइकिल में हम उसको देखें, दैट इज द रीजन मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लास्मोडियम इज द मेन स्टेज। Nutrition saprophytic, yes, we are very evident why it is saprophytic and we have seen how plasmodium is saprophytic because it is growing on, yes, decaying twig, that is dead leaf. Now it is growing, ये हमारा जो प्लास्मोडियम है इंक्रीज हो चुका है सेवरल फीट एंड दिस इज द मेन स्टेज। अब जब फूड फिनिश होगा वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज स्पोर्स बे करेंगे द टिप्स और स्पोर्स को होगा ट्रू सेल वॉल, दे डिस्पोज बाय एयर करंट्स, एयर करंट से डिस्पोज हो गए, दे फॉर्म गैमेट, जाइगोट, देन अगेन प्लास्मोडियम, द लाइफ साइकिल कंटिन्यूज। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी एनसीईआरटी पार्ट. If we have any doubt, slime molds are saprophytic protists. They are protists, right? But they are saprophytic. Please आप लोग नोट करें कैसा saprophytic, आप लोगों को परफेक्टली आई होप याद हो जाएगा, जैसे कि हम पीछे लाइफ साइकिल पढ़ चुके हैं. द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डीकेइंग ट्विग एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर. वो लोग ऑर्गेनिक मैटर एंगल्फ करेंगे एंड दे ग्रो टू सेवरल फीट. अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन. जब अच्छे कंडीशन होंगे, जब उन लोग को ऑर्गेनिक मैटर मिलते जाएगा, दैट इज उन लोग का न्यूट्रिशन उन लोग को मिलते जाएगा, दे फॉर्म एग्रीगेशन called plasmodium, yes, which may grow and spread over several feet. जब तक उन लोग का suitable condition, जब तक उन लोग के favorable condition होंगे, प्लास्मोडियम ग्रो करते जाएगा एंड several feet तक ग्रो करते जाएगा. बट जब अंडर unfavorable condition मीन जब खाना खत्म होने लग जाए, जब फूड खत्म होने लग जाए, प्लास्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर लेंगे. बेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स पे उन लोग के स्पोर्स होंगे. स्पोर पोजेसेस ट्रू सेल वॉल्स. दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स बिकॉज लोगों को ट्रू सेल वॉल्स है, राइट. अंडर एडवर्स कंडीशन में भी लोग सर्वाइव कर पाएंगे. द स्पोर्स आर डिस्पोज्ड बाय एयर करंट. स्पोर्स कैसे डिस्पोज होंगे? बाय एयर करंट्स. ओके, नाउ वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोसेस. Now in the next lectures we will go through the fungi. So please I am going to bring many practice questions videos lectures as well, but मैं चाहती हूँ कि first आप लोगों का protists and fungi दो complete करने के बाद kingdoms I want to bring the lecture videos. I am actually working on practice questions as many as I can do for you people. आप लोग
after completing the lecture, you please go through the practice questions. But after I upload the videos, the lectures that I was saying just now about, जो मैं आप लोगों को अभी बता चुकी हूँ कि जो मैं लाने वाली हूँ, आफ्टर प्रोटिस्ट एंड फंगाई, आफ्टर बोथ किंगडम्स आई एम गोइंग टू ब्रिंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. टिल देन प्लीज़ आप लोग भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहिए. एंड मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि प्रोटिस्ट एंड फंगाई के बाद मैं आप लोगों को लाऊंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन. टिल जब तक मैं आप लोगों को इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वीडियोस मैं आप लोगों को डेली भी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन डालने की मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का डेली भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई एम ट्राइंग टू पुट एज मेनी एज आई कैन वीडियोज़, वेरी शॉर्ट वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, सो दैट यू पीपल कैन गो थ्रू दैट एंड आप लोग की क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू होते रहे. बिकॉज लेक्चर इट इज़ द वे ऑफ डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली, बट आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं एग्जाम में. सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग फेमिलराइज हो जाए क्वेश्चन से एंड आप लोग हर टाइप का क्वेश्चन करके जाए. दैट इज़ द रीज़न आई एम ट्राइंग पुटिंग शॉर्ट वीडियोज एज वेल फॉर यू on daily basis to complete. So that is for today. Please future doctors, take care of yourself and your family. Goodbye.